ہلو، السلام علیکم. کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. آپ بتائیے کیا حال ہے؟ ارے میں لگایا پر آپ اٹھاتے نہیں. ارے حضرت تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ جب میں آن دا وے ہوتا ہوں، راستے میں ہوتا ہوں، سوچتا ہوں بات کر کیسے حالات چل رہا ہے ابھی؟ بس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. آپ کی دعا ہے. اچھا کچھ بات تو بتا دو تاکہ عوام تک پہنچا دی جائے. ارے عوام تک ہم کہاں پہنچائیں گے؟ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے ماشاء اللہ. آپ نے تو جو عوام تک بات پہنچائی ہے اسی کو ہم آگے اور پہنچا دیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے. یعنی کچھ فرق پڑتا وہ نظر آ رہا ہے پبلک پہ؟ ارے ماشاء اللہ بہت فرق پڑے گا، بہت پڑ بھی رہا ہے. ارے ہم تو بولتے ہیں آپ جب تک حیات میں ہو، جب تک فرق پڑے نہیں پڑے، لیکن آپ کے بعد بھی لوگ آپ کے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں گے آپ کی آڈیو سے. مرنے کے بعد ہے نا؟ ہاں ہو سکتا ہے. کیوں؟ قبر میں جب تک کہ انسان زندہ ہوتا ہے. عطا فرما دے، جو صحیح باتیں بولی ہیں غلط بولی ہیں تو اللہ معاف فرمائے بس. نہیں ماشاء اللہ آپ کی باتیں بہت زبردست ہوتی ہے. میں آپ کی کوئی بھی آڈیو ایسی نہیں ہوتی جس کو میں چھوڑ دوں. اچھا. ہاں میں مطلب خاص انتظار میں ہوتا ہوں کہ آپ کی کوئی بات آئے تو میں اس کو سنوں. تو ابھی کہاں پر ہو آپ؟ کون سے ضلع میں، کون سی جگہ پہ؟ مہاراشٹر، ممبئی میں ہوں. نہیں، کون سے محلے میں؟ اندھیری، پتہ اندھیری جوگیشوری. اندھیری جوگیشوری تو میں آیا ہوں. اچھا اب تو جوگیشوری میں کافی مسجدیں ہو گئی. آپ بتا رہے تھے، کون بتا رہا تھا؟ جی 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 برابر کافی ہو گئی. پہلے تو 1 2 تھی، اب الحمدللہ 4 مسجدیں ہو گئی ہیں. 4 ہو گئی؟ کس کی 4 ہو گئی؟ دیوبند والوں کی. اور 4 ہو گئی؟ 4 پہلے 2 تھیں. پہلے 2 تھی. اور بہت بڑی تعداد بڑھ رہی. تو میں لوگ آتے تھے، نہیں آتے تھے، اس طریقے کے تھے. لیکن آج ماشاء اللہ لوگوں کا ذہن صاف ہو گیا ہے. یعنی 4 مسجدیں دیوبند کی ہو گئی جوگیشوری میں؟ جی. اور یہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے دیوبند. آپ آئیے اور ماشاء اللہ دکھاتا ہوں آپ کو 4 مسجد باقاعدہ. اور ایسا بھی بتائیں گے کہ آج سے 5 سال 8 سال پہلے وہاں مسجد دی تھی. پہلے ایک ہی تھی مسجد میں آئے تھے جس نے تقریر تھی غلام محی الدین سبحانی گونڈے والے کی. اچھا. اس میں ہی میں آئے تھے شاید اس وقت. وہ بریلیوں کی مسجد تھی وہاں. اچھا یہ ممبرا میں بھی بہت مسجدیں ہو گئی. ارے ممبرا میں تو دارالفلاح چلتا ہے باقاعدہ. ماشاء اللہ انہوں نے تو دین کو دنیا کے ساتھ میں لے کر انہوں نے اسکولیں. ہاں کیا کون سا چلتا ہے ممبرا میں نا؟ ہاں کون سا دارالفلاح کر کے ہے. ارے بہت بڑا، کتنا بڑا مدرسہ ہے؟ کافی بڑا مدرسہ ہے. اس میں تو بچے سمجھ لیجیے حافظ اور عالم قاری کیا کیا بن کے نکل رہے ہیں، اور بچے اسکولی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ممبرا میں ہاں ممبرا میں دارالفلاح کر کے بہت تگڑا چل رہا ہے صاحب. مطلب پھر ادھر کرلا میں بھی بہت تعداد ہو گئی. کرلا میں تو مرکز ہے باقاعدہ. اور پھر تو حساب بن گیا سمجھ لو، بہت لمبا حساب بن رہا ہے. اور یہ باندرا میں بھی بہت تگڑا حساب ہے. باندرا میں بھی ماشاء اللہ پورے ممبئی میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے. اور یہ تو پہلے کام کیا ہو رہا ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے. جو حق پر ہے وہ خود غالب. وہ بولتے نا کیا ہے کہ پہلے میں خود بمبئی آیا تھا جب، اس زمانے میں بریلیت بہت زیادہ تھی. اب تو شاید بہت کم ہوتا ہے، بہت دھیرے دھیرے بہت فرق پڑ گیا. جی یہ کھڑک مسجد، جو کھڑک مسجد ہے نا، یہ محمد علی روڈ پہ. جی جی. اس میں دیوبندی بریلی دونوں پڑھتے ہیں. میں نے پڑھی اسے نماز، دونوں پڑھتے ہیں. کسی کو منع نہیں کر سکتا امام، ہمت نہیں ہے. دونوں کو اجازت ہے وہاں کی. صحیح بات ہے. مطلب دونوں نماز پڑھیں گے اپنے اپنے حساب سے، آئے جائیں کچھ بھی کرواتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھیں آئے جائیں بس. جی. کھڑک مسجد جو وہاں پر ہے نا محمد علی روڈ کے سامنے. معلوم ہے. اور یہ وہیں پر دیوبند والوں کی ایک اور بہت بڑی مسجد ہے، وہ روڈ کے کنارے اندر الگ بہت مسجد ہے وہیں ثابت. جی جی ان کی مسجد ہے، کافی ہے. وہ کام کر رہے اپنا. میرے خیال تو ایسا لگتا ہے کہ اب بریلیت سے لوگ پریشان ہو کے خود چھوڑ دیں گے کہ یار بہت سن لیا اعلیٰ حضرت کو، اب تو رہنے دو. یہ کان پک گئے. ایک ہی چیز کہاں تک کھائے؟ ایک ہی چیز. آدمی گوشت بھی نہیں کھاتا گھر میں. روز گوشت بھی بنا رہے بھیا، آج تو دال بنا لو یار، سبزی بنا لو. اب حالت سن کے لوگ ان کے ہمارے بھیا چھوڑ دو بھیا، ہو گیا بس، ہو گیا اعلیٰ حضرت یار ختم کر بس. ہو سکتا ہے لوگ مسجدوں میں ایسا کہنے لگ جائیں کچھ دن بعد جمعے کے اندر.
हो सकता है कमेटी वाले खड़े हो जाए या मेंबर या सेक्रेटरी, अरे भैया रहने दे, बस कर, बस हो गया, आला हजरत खत्म कर दे तू, हो गया आला हजरत, आला हजरत जुमे को, आला हजरत जुमेरात को, आला हजरत रमजान में, आला हजरत, क्या तमाशा बना दिया इन लोगों ने साहब। हाँ, अब कोई हदीस में बयान करते हैं ना ये लोग, तो उसमें भी आला हजरत का बीच में गुजर देते नाम। अरे वो तो कल से भी लाके फिट कर देंगे कि वो उन्होंने ये किया, उन्होंने ये, पब्लिक को उल्लू की लकड़ी फेंके हुए, उल्लू की लकड़ी, जैसे उल्लू की लकड़ी फेंकते हैं ना, ऐसे ही मौलवी लोग उल्लू की। लेकिन एक दिन पेशेंट को ये है, मेरी याद रखना कि इंशाल्लाह करीब 10 साल में आपके मुंबई में काफी लोग उलमा को किराम से सवालात करेंगे कि आपने हमें आलात के अलावा और क्या बताया, ये बताओ। ना तो सहाबा किराम के बारे में बताया, न ताबीन के बारे में, न अल्लाह के रसूल की सीरत तुमने बताई, न कुरान की अजमत बताई, तुमने आलात के अलावा बताया क्या हमें। हो सकता है जो मुकर्रिर को पैसा दे के बुलाते ना 50,000 60,000 अकाउंट में डलवा के, तो ऐसा भी हो सकता है कमेटी वाले वो वापस मंगवा लें एटीएम के जरिए, आप पैसा हमारा वापस करिए, ऐसे नहीं जानते कि तकरीर कर, तुमने तकरीर की तो गलत तकरीर करो तुम सुनी भाभी, और अब पैसा जो हमने दिया 50,000 वो हमारा पैसा वापस मंगवाओ। सही बात है, नहीं होने लगेगा क्या, नहीं पैसा मंगवाओ इससे वापस। ये मौलवी ने तो हमें कौम को गुमराह कर रहा, 50,000 रुपये हमने भेजा, यहाँ के सुन्नी भाभी कर रहा था। बराबर। नहीं गुस्सा आने लगा लोगों को, गुस्सा आने लगा बहुत ज्यादा। अब अनकरीब ऐसा मिजाज, ऐसा माहौल जब बनेगा ना एक जलसे में बम्बई में, तो फिर और जगह के लोग भी तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे। सही है। एक जगह जरा शुरुआत हो जाए तो बम्बई में, एक जगह हुई, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर इंशाल्लाह लाइन लग जाएगी इंशाल्लाह। सही है। जो आपने जो 2-3 मुद्दे उठाए ना, उससे फर्क पड़ रहा है। जैसे काबे के इमाम के ताल्लुक जो आपकी ऑडियो वगैरह होती है, अच्छा वो ज्यादा उठ गई, वो ज्यादा, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त बात है। क्योंकि ये जो आप बुलवाते हैं ना कि या तो उनको काफिर कहो, तो वो बोलते हैं अगर उनका ईमान अगर नहीं चलता है अगर को मान लिया जाए, तो जो हुसामुल हरमैन का जो फतवा लाया इन्होंने, तो उसमें भी तो ये कहा है ना, अगर ऐसा अकीदा है तो काफिर है, और जबकि उनका अकीदा ऐसा नहीं है, तो फिर उस अगर को फिर नहीं मानते हैं लोग। उस अगर को नहीं मानते, इस अगर को मान लेते हैं। हाँ, ये वाला मुद्दा जो है ना आपका बहुत जबरदस्त है। लेकिन अभी और एक कब्र पे अजान देने के ताल्लुक से, हाँ ठीक है, कलमात कुछ पढ़ना चाहिए। नहीं, अजान देना तो मना नहीं है, लेकिन एक न दे, ज्यादा फायदा होना है तो 10 अजान दो। एक तो कब्र पे, एक तो गुस्ल के पहले दो, एक गुस्ल के बाद दो, एक कफन के पहले दो, एक कफन के बाद दो, 4, एक दफन से पहले दो, एक दफन के बाद 6। हाँ, मतलब मुसलसल देते रहो ताकि कोई भी मुड़ में ना आ जाए। नहीं, हर कहीं रोक के 2 अजान ताकि उम्मत को फायदा हो। ये मना कहाँ लिखा है? सही बात है। ये कहते हैं मना कहाँ लिखा है, तो हम भी कह रहे हैं मना कहाँ लिखा है, 10 अजान दो। हाँ, एक पे क्यों बात कर रहे हैं, 10 दो। जब एक में इतना फायदा है तो 10 में और ज्यादा होगा। हाँ, फिर रोज मुसलसल वो जाया करे, अब्बा मर गए तो जाया करे बेटा रोज। समझ में आई यार, कब्र में शैतान के क्या काम डाले। अभी पीछे हमने मरने से पहले उसका पीछा था शैतान, अब काहे का पीछा कर रहा है। यहाँ तक मैंने एक हदीस का सुना था हजरत, आपसे बता दूं कि जब इंसान बोले मर जाता है, ईमान पर जाता है, तो शैतान उधर अपने सर पे मिट्टी डालता हुआ वहाँ से भाग जाता है। यानी उसके ईमान पर जब खात्मा हो गया, तो शैतान का दखल खत्म। बिल्कुल, आपने ये हदीस जो आपने पढ़ा होगा हदीस में है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हक है ना। तो और अगर वो बेईमानी पर जाता है तो वो खुश होता है, तो यानी यहाँ उसका खुश होना तो मगर गम मनाना पर तो वो गौर करेगा ना, जो ईमान वाला होगा जी वो मानेगा। लेकिन ये कहाँ मान रहे हैं, ये तो कह रहे नहीं, फाजिल बरेलवी ने जो लिखा वो मानेंगे, खबर में शैतान आता है तो वही मानेंगे। फिर ईमान कहाँ रहा इनका। इतनी तारीफें होती है, और वो एक अमीनुल कादरी जो है, वो तो बिल्कुल किस तरह बकवास किया है। वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। वो दुनिया में देखना जिल्लत की उसके ऊपर बारिश होगी इंशाल्लाह।
उसको तो बरेलवी नहीं मान रहा है, उसको तो बरेलवी भी सैयद नहीं मान रहा है, ना आलिम मान रहा है। बरेलवी खुद ही उसके बारे में जाने क्या क्या लिख रहे हैं कि ये तो देवबंदी से मिलता है और जाने क्या क्या करता है। इस तरह बकवास करते हैं लोग। लोग अंधभक्त है, जैसे आरएसएस में बोलते हैं ना, वो अंधभक्ति है। लेकिन वो पब्लिक समझ जाएगी ना। मालेगांव में बताया करीब करीब 1000 मस्जिद हैं कम बेश, ऐसी 1000 है कम भी है, उसमें 75% उलमा अहले सुन्नत देवबंद वालों की है, और बरेली वालों की, उलमा अहले सुन्नत बरेली वालों की 250-200 जो भी है, इनकी 25% तादाद है, 30 होगी ज्यादा। अब ये अमीनुल काजी के बोलने से 10% और कम हो जाएगी शायद। जो इसके मानने वाले हैं वो भी छोड़ देंगे, अरे भैया रहने दो भैया, होगी हालात, तुमने सब कोई मुसलमानियत की खारिज कर रहा हो, रहने दो, हम भी, वो हो सकता है कमेटी पूरी की पूरी बदल जाए मालेगांव में। ये हो सकता है जुमे में ऐलान पकड़ ले इमाम को, अगर ज्यादा बोले देवबंदी को, अरे भैया बंद कर रहे, अभी तो झंझट होते होते बचाए अमीनुल काजी के, तू वो लगा झंझट करने। हो सकता है जुमे में जब ये हंगामे होंगे ना मालेगांव में, तो इंशाल्लाह फिर इंकलाब आएगा। वो होना चाहिए। पब्लिक को बहुत गुमराह कर दिया इन लोगों ने, यही सब कर करके, ये देवबंदी वो वहाबी, उम्मत के टुकड़े कर डाले लोगों जी। सही बात है। एक हदीस रटा दी है कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, और कुछ याद ही नहीं कराते, बस इसी हदीस को याद कराते, और वो भी अपने लिए फिट कर लिया। तो एक ही हदीस थोड़ी है, हदीस बहुत सारी है। हुजूर फरमाते हैं इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह का जन्नत में जाएगा, तो उसे क्यों बयान नहीं करते? हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी, उसने कुफ्र किया, उसे क्यों बयान नहीं करते? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, उसे क्यों बयान नहीं करते? उसे बयान ही नहीं करते। बस 73 से 72 साल में जाएंगे, बस एक ही हदीस रटे रहते हैं। बस एक हदीस का मफहूम है, गालिबन मैं सुना हूँ, पढ़ा तो नहीं हूँ, एक हदीस का मफहूम है जिसमें गालिबन कोई सहाबी है, कोई सवारी पे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा उनको नाम से, तो उन्होंने कहा हाजिर जी हुजूर फरमाइए, तो उन्होंने 3 बार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आवाज दी ताकि उनका जहन मुतवज्जे, मतलब उनकी तरफ हो जाए पूरा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से उसको मतलब जन्नत मिलेगी और बहुत बशारत दी। तो साहब बड़े खुश हुए, तो बोले क्यों ना मैं ये सबको बता दूं ये बात। तो बोले रहने दे, अगर ये बता देगा तो लोग अमल को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अमल को छोड़कर खाली इसी पर टेक लगा के बैठ जाएंगे, जिस तरह आज बरेली अपने आप को टेक लगाकर बैठ गए, सारे अमलों से दूर है, बस अल्लाह को मान लो, उनके हिसाब से जन्नत में चले जाओगे बस। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देवबंदी कोई ऐसा नहीं बोला है कि आज तक कि आज कासिम नानूसी कॉन्फ्रेंस है, नहीं, उनके खानदान में एक बामल हुए मुस्तफा रज़ा साहब, मुफ्ती आजम हिंद जिन्हें कहते हैं। अच्छा, बस वही बामल हुए, बाकी तो बेड़ा कर दिया बाद वालों ने। एक सदर उलामा हुए तहसीन रज़ा साहब, ये भी बामल थे, लेकिन फिर उनमें कोई और दूसरा और नहीं आया इस तरह के बामल। और एक और ऑडियो सुन रहा था जिसमें आपको कोई बरेली भड़का रहा था कि बोले आपके खिलाफ एक देवबंदी हंसते मजाक उड़ाते हैं आपकी, और आपके खिलाफ बोलते हैं, आपको मजा लेते हैं, ऐसा मैं सुन रहा था। तो मैंने आज तक मैंने तो कोई देवबंदी से आपसे इस तरह बदकलामी या मतलब इस तरह की बात करते हुए तो मैंने नहीं सुना। एक दो कर भी दे तो उससे क्या मतलब आ रहा है? एक दो तो सही बात है। और मैं गालिबन आपको ना 5 साल से ज्यादा हो गया मैं आपको जानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अंधेरी में कितनी मस्जिद है? अंधेरी में तो एक तो स्टेशन वाली मस्जिद है, जो स्टेशन पर ही खास एकदम बड़ी मस्जिद है, और भी अंदर होगी काफी मस्जिद है, काफी लोग हैं माशाल्लाह जुड़े। हकीकत बताऊं, बम्बई के कमबेश एक दो आलिम नहीं, बहुत सारी तादाद है जो अंदर से मानते हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो आला हज़रत को नहीं मानते हैं। वो सुन्नी है, लेकिन बहुत सी मजबूरी होती है ना कि यार रोजी रोटी का मामला है। अभी सहरान जो आपकी बात कर रहा था, आलिम नहीं, बहुत बड़ी तादाद में आलिम है। मैं आया हूँ बम्बई, बहुत आया हूँ और रुका भी हूँ, और मैं मिला भी हूँ इमामों से। एक अंटाफिल में इमाम थे मौलाना फैज अहमद फैज बम्बई, जो शेख मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है ना, हाँ, अंटाफिल में वही इमाम थे। वो भी वैसी मिजाज के थे, हमारे जैसे मिजाज के। वो अब तो इंतकाल हो गया उनका, ट्रेन में इंतकाल हुआ था, कहीं आए थे प्रोग्राम में जब भुसावल साइड कहीं। और भी आपसे एक बात कर रहा था ना, हाँ, सहरान वो जो बोल रहा था मैं उसूल हदीस पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, हाँ, उसने खुद इनकार कर दिया कि मैं
आला हज़रत को नहीं मानता हूँ, फिर किसकी वकालत करने आया था वो? किसकी वकालत करने आया था? बताओ सर। अगर कुरान और हदीस की वकालत ही करनी थी तो फिर नहीं, और भी इमाम दरगाहों पर और बम्बई में बहुत सारी तादाद है जो अंदर से मतलब हालात के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, सुन्नी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो क्या है, मजबूरी में कुछ लोग सोचते हैं कि यार एकदम हम बोलेंगे तो हमारा पेड़ा गरक हो जाएगा। जैसे हजरत मौलाना कारी ज़हीर साहब, इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद सरताज बम्बई है, सरताजुल उलमा है, मुफस्सिर कुरान है, बहुत बड़े मुफस्सिर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं वो। तो उन्होंने भी हक बातें जब बोली थी तो बरेली वाले उनके खिलाफ हो गए थे। इज्तिमा में बोली थी ना कि कब्र में मसलक का सवाल नहीं होगा, तो इसके बारे में बरेली भी बहुत खिलाफ हो गए थे उनके कि ये क्या बात दी। कह रहा बरेली बाद में क्या कह रहा, बरेली कब्र में तो मसलक की हालत का ही सवाल होगा। अब बताओ मसलक की हालत का क्या सवाल होगा कब्र में? ये कारी ज़हीर साहब ने नहीं, कारी ज़हीर साहब ने यही बात बोली थी इज्तिमा में। शाकिर रज़ी साहब का जो इज्तिमा होता है ना, पहले शाकिर रज़ी साहब बहुत बढ़िया तकरीर करते थे, आज से 15 साल पहले। अच्छा। लेकिन अब वो क्या मालूम क्या हो गया। हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी इस्लाही तकरीर, यानी इनकलाबी तकरीर होती थी। मैंने सुनी है सूरत में, जो सबसे पहले इनका इज्तिमा हुआ था ना सुन्नी इस्लामी का, सूरत में। अच्छा। उसमें मैं आया था। एक वहाबी ने किरात की थी, उसका नाम था सुलेमान, वो चला गया इंग्लैंड। अब सूरत में इमाम था, वही नजाही बाजार में। मैं उससे भी मिला, मैंने उसके घर खाना खाया है। वो चला गया इंग्लैंड, चला गया। नजाही बाजार की जो मस्जिद है ना सूरत में, मैं इमाम था वो। उसने वहाँ किरात की थी। शाकिर रज़ी साहब का जो इज्तिमा हुआ था ना सूरत में, उसने किरात की थी वहाँ। तो वहाँ पर ये इंग्लैंड से ये भी आए थे, कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब आए थे, और हामिद अशरफ साहब आए थे, जो आपके मोहम्मद अली रोड पे जो मदरसा है ना, दालू मोहम्मदिया, वो उनको लक़ब था, क्या नाम था, सदर उलमा का लक़ब था, क्या था, हजरत मौलाना हामिद रज़ा साहब, अशरफुल उलमा जिनको कहते हैं, कचोचा कहते हैं। वो भी आए थे उस जलसे में, इज्तिमा में। हम कोटा से आए थे, पूरे ट्रेन में एक डिब्बा भर के आए थे, पूरा डिब्बा बोगी करके आए थे। तो उस जमाने में शाकिर रज़ी साहब बहुत इनकलाबी तकरीर करते थे, यानी सुलझी हुई है, देवबंदी बरेलवी की बात नहीं होती थी। अब तो करने लग गया, वो करने लग गया, बहुत ज्यादा करने लगे। नहीं, कुछ तो इसलिए करते हैं कि यार हमें लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम देवबंदियों के खिलाफ नहीं बोलते, तो फिर जबरदस्ती बोलने लगते हैं। अरे भैया नहीं बोल रहे तो क्या हुआ, क्या जरूरी है कि तुम लोगों के टांग कसी के ऊपर देवबंदियों की टांग खींचना शुरू कर दो बिला वजह? बहुत उनके बच्चों को ये सिखा देते कि देवबंदी काफिर है, कोई इल्म नहीं। बहुत ही अच्छी तकरीर होती थी उस जमाने में शाकिर रज़ी साहब की, 15-20 साल पहले। अब नहीं हो पाती, क्योंकि जब दिमाग में खन्नास भर जाए ना कि देवबंदी बरेलवी, तो फिर वो तकरीर नहीं कर पाता। वो सोच फिर इसी में रह जाता है कि यार हमें इसका रद्द करना है, इसकी बुराई करना है। उसी बात के तो पैसे भी मिलते हैं ना। मेरी भी हो चुकी उनके साथ तकरीर वहाँ पर इंदौर में, ये कड़ाव घाट पे मस्जिद थी, पहले मेरी हुई थी, बाद में इनकी हुई थी, शाकिर नूरी साहब की। तो उस वक्त भी इन्होंने ऐसी बात, उस वक्त भी ऐसी हुई। आज इलाके में आप रहते हैं, हाँ, वहाँ आपको कोई इतना टेंशन नहीं है? हमारे इलाके में सब सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस तरह का नहीं है हालत के मानने वाले, सब कट्टर सुन्नी है। मिला शरीफ होता है, हम लोग खुद मिला शरीफ कराते हैं, सलाम होता है खड़े होकर। लेकिन ये फजर बाद जोहर बाद का मामूल नहीं है सलाम पढ़ने का, बस यहाँ मिला शरीफ में सलाम होता है, मिला शरीफ में लोग पढ़ते खड़े होकर सलाम। सब कट्टर सुन्नी है, पूरा यहाँ से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा कट्टर सुन्नी इलाका हमारा। लेकिन आला हज़रत को नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। अगर कोई तकरीर कर भी देगा यहाँ हज़रत के बारे में तो झगड़ा फसाद हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये मानते हो बस सिलसिलेवार चलो, अल्लाह के रसूल सीरत बयान करो, साहबा की अज़मत बयान करो, अहले बैत के फज़ाइल बयान करो, औलिया किराम की करामत सब बयान करो, लेकिन आला के बारे में करेगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा। इनका जितना भी उर्स में जितनी गर्दियाँ मतलब लोग जमा होते हैं, बल्कि मैं तो मतलब देवबंद का जो इज्तिमा होता है उसमें उतने लोग आते हैं, कई लोग। देखो देवबंद वाले कभी थानवी साहब का चर्चा नहीं करते, ना नरसी साहब का करते, वो तो अल्लाह रसूल के हुक्म बताते हैं और साहबा की अजमत बताते हैं। देवबंद वाले, वो कभी आपने नहीं सुना होगा कि देवबंद वालों ने 5 मिनट भी थानवी साहब की तारीफ की हो, 5 मिनट भी, या मैं खुद नहीं सुना। ना वो कभी हुजूर थानवी साहब कहते, ना वो कभी हुजूर नानवी साहब कहते, वो तो खाली हजरत कहते हैं, बस रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ये तो रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहते हैं, हुजूर भी कहते हैं अपने आलिमों को, बरेली वाले। तो इसीलिए तो बम्बई की आवाम भी समझ जाएगी एक दिन, इंशाल्लाह देखना आप, बम्बई के सुन्नी नौजवान एक दिन तैयार हो जाएंगे मीटिंग करके, नौजवान लोग दोस्त यार,
यार अतहर हुसैन काजी कहता है, जामिया मिस्र का बहुत बार बार कहता है, एक बार चल के देखो यार, वाकई आंखें खुलना होगी और हकीकत सामने जाएगी। जो बरेली कहते हैं वो सुन्नी है, इनके हिसाब से सुन्नी है कि नहीं, या इनके फतवे के हिसाब से वो वहाबी होते हैं। तो सोचेंगे यार अपने पैसे की कमी नहीं, चलो वीजे बनवाओ, चलो जामिया मिस्र में 15 दिन रह के आएंगे, पूरी तहकीक करेंगे 15 दिन में, एक एक कई आलिमों से मिलेंगे, सबके लैपटॉप में रिकॉर्ड करके लाएंगे, रिकॉर्डिंग लाएंगे, फिर यहाँ आके हम करेंगे कि इनका ये बताना बरेली वालों का सही है कि नहीं कि वो सुन्नी है कट्टर। सुन्नी तो है अपने हिसाब से सुन्नी है, लेकिन बरेली वालों के हिसाब से वो वहाबी हैं जामेदर वाले। बात समझ गए आप? जी जी समझ गए। बरेली वालों के हिसाब से वो वहाबी हैं, पक्के वहाबी होंगे इनके फतवे से। अगर ये पहुंच जाएंगे ना बम्बई के लोग, जिस दिन 20 लोग, ये कलकत्ता के 20 लोग जामेदर, तो कहेंगे यार अतहर हुसैन काजी ने 100% सही बात की, बिल्कुल इनके फतवे से वो वहाबी हैं, पक्के वहाबी। इनके जो है जैसे नूर हसन है, जलालुद्दीन है, जमशेद है, ये लोग आपसे बात क्यों नहीं करते? ये सब समझ गया कि इससे बात हो सकता है, समझ गया कि बात कहीं से कहीं वो समझते हैं, खाने का हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की। आपका तो चैलेंज बाकायदा पड़ा हुआ रहता है आपका यूट्यूब पर, एकदम खुले ऐलान में है कि उनको कोई आलवर्ड कई बार चैलेंज दिया है कि आलवर्ड कोई भी आलिम अगर काबे के इमाम को, मस्जिद नबी के इमाम को मेरे सामने साबित कर जाए तो जगह बता रखी, अजमेर शरीफ दरगाह के सामने, कलियर शरीफ दरगाह के सामने, सीहोर दरगाह के सामने, और रायसेन में अजहर ख्वाजा गरीब के भांजे हैं एमपी में, यहाँ पर दरगाह के सामने आ जाओ। 4 जगहें बताइए, अगर हिम्मत है तो आओ, दुनिया का कोई भी आलिम आए, काबे के इमाम का, मस्जिद नबी के इमाम को मेरे सामने साबित कर जाए। वो कितने ही आलिम ले आए, हम तो सिर्फ 4 आलिम लाएंगे बस, ज्यादा नहीं। वो ले आए अपने साथ में 50 जितने चाहे ले आए, हम तो 4 लाएंगे बस, वो जितने चाहे ले आए, 400 ले आए, 500 ले आए, लेकिन साबित करके जाऊंगा। इतना बड़ा चैलेंज है ये लोग। अल्बर्ट चैलेंज देता हूँ मैं, और मैं अल्लाह के हुक्म से दे रहा हूँ, मेरी मतलब इसमें कोई वो नहीं है, अल्लाह का हुक्म होगा इस तरह का। अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए खड़ा किया तो अल्लाह का ही तो हुक्म मानूंगा मैं, मेरा इसमें कोई दखल नहीं, सब अल्लाह का फजल, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का करम का हिसाब है, और कोई बात नहीं है। मेरा नंबर भी बताता हूँ, 88-152-53-598, चाहे तो फोन पे मिला दो इस बात में। अगर नहीं आ सकता दरगाह पे अजमेर शरीफ, नहीं आ सकता कलियर शरीफ, तो फोन पे कर बात मुझसे, 20 मिनट बात करो, डाल दे, तू भी डाल दे चैनल पे, मैं भी डाल देता हूँ, आधे घंटे बात कर इसी मामले में, कोई भी बात करे, क्या ख्याल है? मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बात करे, फोन पे मुझसे कर ले भैया, तू भी चैनल पे डाल दे, मेरे बारे में जो भी डालना तू डाल दे, मगर रिकॉर्डिंग करके वही डाल जो मैंने बात किया है, एडिट मत कर, नहीं तो तू भी वही डाल जो मैंने बात की हो, मैं भी वही डालू जो तूने बात किया, आधे घंटे। ये नहीं डालते अपने चैनल पे, ये वाली सब बातें नहीं डालते, ये जहाँ पर ये चिल्लाते गालियाँ देते ना, वो ज्यादा डालते। डालने सालों को इनसे कुछ नहीं हो रहा, इंशाल्लाह एक दिन देखना बशारत मेरी पेशेंट को ही कि बम्बई के लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं बम्बई के लोग, मामूली मत समझना आप। बम्बई के लोग सारे आलिमों की हिस्ट्री जानते हैं, हिंदुस्तान में जितने आलिम कौन क्या कर रहा है। गुलाम जिलानी अजहर कर्नाटक में लड़की के चक्कर में भागा, और भी बम्बई में मुंबरा में वो लड़की के चक्कर में, आपको मालूम है मुंबरा में एक इमाम ने अपने कोई नौकरानी थी उसको कत्ल कर दिया था, उसका फिर वो सर उठाकर वो उसमें डाल दिया था टंकी में, मुंबरा की मस्जिद में। हाँ, उसके उसमें टॉयलेट में डाल, आज से 20 साल पहले करीब, टॉयलेट के वो उसमें डाल दिया था, उसमें जो वुजू करने की टंकी होती है ना पानी की, उसमें डाल दिया था सर, उसने लाश को वो कुएं में फेंक आया था वो इमाम। अभी भी तो एक बरेली मामला हुआ ना कि मदरसे, वो भी बरेलवी इमाम था, बरेलवी था वो भी इमाम, गोंडा के रहने वाला था कहीं का। अच्छा, बरेलवी था, मालूम कर लेना बरेलवी था, क्योंकि मैं सफीपुर में था जब ये बात मालूम हुई थी, तो एक साहब नमाज पढ़ के आए थे उसके पीछे, वो पीछी के थे, तो वो कह रहे साहब हाथ बांधे लोग खड़े रहते थे उसके इंतजार में, उस इमाम के हाथ बांध के लोग मुसाफा करते थे, यानी ऐसे इतनी इज्जत थी उसकी। क्योंकि देवबंद वालों में तो ऐसा होता नहीं है कि हाथ बांध के लोग मुसाफा करते हुए खड़े हो जाते हैं लाइन से, आमतौर से देवबंद वालों का होता है। बस ये मौलाना मक्की हिजाजी साहब भी बाकायदा मक्की में बैठकर वो बयानात करते हैं, बात करते हैं, वो भी 5 मिनट वो 5 मिनट में 10 सवालों के जवाब देते हैं। ऐसा मुफ्ती होना चाहिए दुनिया में जो 5 मिनट में 10 सवालों के जवाब दे दे। और वो भी वहाँ पर उनको इजाजत मिली है, और उनको भी मिली थी, क्या नाम है, वो औलिया किराम को ही मानते हैं, वो मस्तों को ही मानते हैं, मजजूबों को ही मानते हैं, वो अल्लाह के रसूल को हयातुन नबी मानते हैं। मौलाना मक्की हिजाजी रहम साहब अल्लाह के रसूल को हयातुन नबी मानते हैं। और फिर जुल्फिकार नक्शबंदी साहब को भी अंदर मक्की के अंदर जाने की उनको भी मिले थे परमिशन। इंशाल्लाह एक दिन देखना पब्लिक जागेगी बम्बई की और मिस्र जाएगी। तो मेरा तो है कि
अपील है बम्बई के लोगों से और कलकत्ता के लोगों से, दिल्ली के, और ये भी बड़े बड़े शहर हैं, या इंदौर या उज्जैन के, यार एक बार मेरे से चल जाओ तुम प्लानिंग से, 10 देवबंदी आलिम को जरूर लो। क्या है उनका खर्चा मैं दिलवा दूंगा, 10 देवबंदी आलिम का मैं चंदा करवा दूंगा। वो अपने आलिमों का वो दे दें, देवबंद वालों का मैं जमा करवा दूंगा। और 10 लोग बीच के आलिम, बीच के आदमी 30 आदमी लो, और उसमें अरबी जानने वाले 5 आलिम रखो कि वहीं की वहीं फतवा लेके लिख के वो फतवा दे दें और फतवा का जवाब ले लें जामेदार वालों से। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में ये बात कंफर्म हो जाए कि जामेदार वालों का क्या अकीदा है। अच्छा, ये जो बात करते हैं अपने हजरत हाफिज अली असगर साहब, हाँ, उनकी बात भी अच्छी रहती, सही रहती, क्या रहती है? क्या मतलब? वो जो दलाइल वगैरह देते हैं, बात करते हैं, उनके पास तो दलाइल का खजाना है। दलाइल उनके सामने भी कोई बरेलवी को देखा टिक कर बात करता है, क्या है, दलाइल की भरमार है, खजाना है। मेरे पास दलाइल मलाइल कुछ नहीं रहते, मैं तो जबानी बात करता हूँ वैसे ही। वो मैं तो अकली तौर से बात करते हूँ, तो दलाइल में कहाँ जमा करते हैं। वो तो मौला हाफिज अली असगर साहब इस काम के लिए हैं, उनके पास दलाइल फौरन रहते हैं, वो एकदम दलाइल भेज देते हैं, जवाब भेज देते हैं। जी जी, वो भी शेर अहले सुन्नत है साहब, अहले सुन्नत के मुनाजिर हैं। हाँ, बराबर। उनके पास वो क्या है, दलील एकदम भेज देते हैं। उनके पास में क्या मालूम खजाना है क्या है, वो जैसे बात करते हैं एकदम बहुत जबरदस्त अल्लाह उनसे काम ले रहे। वही काफी काम करा उन्होंने भी, बहुत लोगों के दिल खुल गए उनसे भी, और काम हुआ। अल्लाह ताला आपके पास रहते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग से बात करते तो इनकी बात कराने का हाफिज साहब की दलाइल पर। हाँ, वो तो जो उनसे करते वो करते हैं, मुझसे जो करते वो अलग करते हैं। मैं क्योंकि देवबंद वाली किताबों की पर वकालत नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं देवबंदी ना बरेलवी, मैं तो अहले सुन्नत वल जमात का हूँ। मैं अजमेरी सुन्नी ख्वाजा गरीब नवाज का जिन हूँ। मुझसे तो वो बात करो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो, काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में। मैं तो दोनों को मुसलमान समझता हूँ, सुन्नी समझता हूँ, और जो गलत है उसको गलत समझता हूँ, खत्म बात। मैं खाकी जिन हूँ हजरत का। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी शख्सियत है उनका, तो आला हजरत नहीं कहते हैं उनको, असली मिज़ाक वही है। अरे साहब, इस्लाम तो उन्होंने फैलाया हिंदुस्तान में, बताइए सही बात, कितनी बड़ी तादाद में फैलाया। ये उनका मुकाबला ख्वाजा गरीब नवाज से कराते हैं बरेली वालों का, कि उन्होंने इस्लाम फैलाया, इन्होंने बचाया है। या क्या बचाया? देवबंद वाले इनके मुखालिफ, नदवे वाले इनके मुखालिफ, बदायूं वाले इनके मुखालिफ, रामपुर वाले इनके मुखालिफ, जामे निजामी हैदराबाद वाले इनके मुखालिफ, फुलवारी शहरी वाले इनके मुखालिफ, खानकाह मुजीबिया बिहार वाले इनके मुखालिफ। क्या इस्लाम फैलाया, क्या इस्लाम बचाया? और इख्तिलाफ पैदा कर दिया, आए दिन इतना इंतशार पैदा कर दिया कि जुमे की अजान अंदर नहीं बाहर दो। सब जगह अंदर होती थी पूरी दुनिया में जुमे की अजान, बाहर दो, इस पर लड़ाई झगड़े हुए। और फिर ये अकीदा रखो, वो अकीदा रखो, कब्र में शैतान आता है, जने क्या क्या अकीदे घुसड़ दिए अल्लाह जाने। कब्र में शैतान आता है, इन्होंने बताया ना अल्लाह। तो कैसा दूं उसको, काटेगा वो? जी चले सर, चलो ठीक है, फिर बात करेंगे। ये डलवा दूं चैनल पे? जी जी, डलवा दीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, जरा क्या नाम है आपका? शेख मोहसिन। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। शेख मोहसिन, अंधेरी, मुंबई। ठीक ठीक ठीक, सलाम।